Good morning, student. Welcome in Step 2 Smart Class. I am Saroja Singh Yadav. Today I will teach you Class 7th, Lesson number 2, Subject English, Odd One In. In this lesson we will see two girls getting new admission in a same class in a same school. One girl whose name is Malti and another girl whose name is Rima. Rima is a little bit smart as per her dress up and from the family background. And Malti, she is not a smart, but she is also intelligent, and her appearance is not looking as smart as the Rima. So how the Rima having a image about the Malti and what she is doing in the classroom and creating a problem to a Malti while settling in the class, that things is clearly shown in this lesson. So most of the students, while coming from the other school, they facing such kind of problem in a school that is clearly visualized in this story. Now see, this is Rima and this girl is a Malti. Rima having a small hair and well dressed, and this Malti, his hair is oily, long skirt and wearing bindi, not looking too pretty. Now we will see here. First of all, we see the meaning of this whatever the new words in this lesson. Shrugged, ignorance, settling, moving to a new place and becoming a comfortable there. Grimaced, disgusted, sniffed, spoke without respect. Our lesson is Odd One In. How was the first day of school? Asked mother as Rima sat down for dinner. Rima डिनर के लिए जैसे ही बैठी, उसकी मम्मी ने पूछा, आज का पहला दिन का स्कूल कैसा रहा? ओके, रीमा श्रग्ड. नो लेसन, जस्ट सेटलिंग इन. रीमा ने मुंह बनाते हुए कहा, कोई पढ़ाई नहीं, जस्ट हम सेटल होते रहे. Any new girl in your class? Enquired her father, Mr. Sen. उसके पिताजी मिस्टर सेन ने पूछा, कोई दूसरी न्यू लड़की भी क्लास में आई है? Only one, Malti, and she is funny, grimaced Rima as she helped herself to the salad. रीमा ने कहा, एक ही लड़की, एकदम फन्नी, उसका नाम मालती है. रीमा मुंह बनाती हुई अपने आप के लिए सालाज लेने में व्यस्त दिखाती रही. Why do you say that? asked Mr. Sen. मिस्टर सेन ने कहा, आपने ऐसा क्यों कहा? She can't speak much English. वह बहुत इंग्लिश नहीं बोल पाती है. She has come from another state, sniffed Rima, naming one at the other end of the country. रीमा कंट्री के अनदर स्टेट का नाम बोलती हुई बोलती है कि वह इस स्टेट से आई है और अपना डिसइंटरेस्ट, अपना जो है इंटरेस्ट उसमें से हटाती हुई बोलती है कि वह उस स्टेट से आई है और उसे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता है. ओ चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेट आर सपोज्ड टू बी क्लेवर. They are especially good at math, said the Mr. Sen quietly. Mr. Sen ने बड़ी ही जल्दी से कहा कि उस स्टेट के बच्चे बहुत चतुर होते हैं और मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. Well, this one does not seem smart at all. ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि वो बहुत ही स्मार्ट होंगे. Oily hair, bindi and all. Good morning, चीचूर, mimicked Rima. रीमा डिसरिस्पेक्ट दिखाती हुई, यानी उसके प्रति थोड़ा भी इज्जत नहीं है ऐसा दिखाती हुई बोली. बालों में बहुत तेल लगा हुआ, बिंदी, ये सब कुछ उसको, ये सब देखकर मुझे वो थोड़ी भी स्मार्ट नहीं लगती है. Her parents exchanged gallants. Rima was their only child.
They doted on her, but she could be insufferable at time. रीमा के पेरेंट्स ने आपस में बातें किया। उनकी रीमा एक ही बच्ची थी और वे उसे अपना पूरा प्यार दिखाना चाहते थे, बट शी कुड नॉट बी insufferable at time, और वे नहीं चाहते थे कि वह उस समय में दुखी हो और बहुत ही निराश हो जाए। I do hope you and your friends will not make things too difficult for Rema, signed Mr. Same as he rose from the table. जब मिस्टर सेम टेबल से उठने लगे तो उन्होंने रीमा को कहा, मैं सोचता हूँ तुम और तुम्हारी दोस्त मालती के लिए क्लास में डिफिकल्ट यानी मुश्किलमय वातावरण तो नहीं बनाएंगे। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट। रीमा और उनकी सहेलियों ने, यहाँ पे गैंग वर्ड यूज किया है क्योंकि वे रीमा की सहेलियां गलत काम कर रही थी, इसीलिए यानी रीमा और उसकी सहेलियों का झुंड, उन्होंने क्या किया है, ऐसा ही निश्चय किया था कि वे मालती को परेशान करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनट मालती एंटर्ड द क्लास दे ऑल चर्च्ड गुड मॉर्निंग। अगली दिन जैसे ही मालती क्लास में घुसी, रीमा और उसकी सहेलियों ने कहा गुड मॉर्निंग, ऐसे कहकर उसे चिढ़ाया। पुअर मालती, she did not realize that they were making fun of her. She beamed back at them and replied good morning. दुखी मालती यह नहीं समझ पाई कि वे लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही हैं। Beamed means smiled happily. मालती मुस्कुराती हुई उन्हें रिप्लाई करती है गुड मॉर्निंग। एक्चुअली वह गुड मॉर्निंग ही बोलती है, लेकिन उसके बोलने के टोन में थोड़ा सा तोतलापन होने की वजह से वो गुड मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग टाइप का बोलती है, जिसकी वजह से क्लास की लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं। शहनाज गिगल्ड, व्हाई डू यू पुट सो मच ऑयल ऑन योर हेयर, शी आस्क्ड रूडली। शहनाज खिलखिलाती हुई रूड बहुत ही घमंडी स्वर में मालती से पूछती है, आप अपने बालों में बहुत सारा तेल क्यों डालती हैं? मालती लुक्ड ऑफेंड बट डिड नॉट रिप्लाइड। मालती को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वह कुछ भी उत्तर नहीं देती है। एंड द शॉट सो लॉन्ग, सैड क्लैरी कैटली। ये कैटली मीन्स अनकाइंडली, और ये क्लैरी बड़ी ही अनकाइंडली वे से पूछती है, और आपकी स्कर्ट बहुत लंबी क्यों है? मालती फ्लर्स्ट मीन्स बिकेम रेड एंड हॉट। मालती बहुत गुस्सा हो जाती है। शी वॉज अबाउट टू से समथिंग व्हेन टीचर एंटर। मालती सोचती है कि वह उससे कुछ कहे, उतने में ही क्लास में टीचर आ जाती है। एज द क्लास प्रोग्रेस्ड, everyone was surprised to see Malti raised her hand whenever teacher asked a question. जैसे ही क्लास में पढ़ाई होने लगती है और टीचर प्रश्न पूछने लगते हैं, तो मालती अपने हाथों को ऊपर करके प्रश्नों के उत्तर देने की इच्छुकता दिखाती है। Yes, Malti, your answer said teacher. टीचर ने जवाब दिया, Yes, मालती, आप आंसर बोलिए। मालती answered correctly and teacher nodded in the appreciation. मालती सही जवाब देती है और टीचर अपने सिर को हिलाते हुए उसे बहुत ही उसकी प्रशंसा करते हैं। When Rima recounted this at home, her mother said, "Sounds like a clever girl." जब रीमा ये सारी बातें अपने घर में अपनी मम्मी के साथ शेयर करती है, तो उसकी मम्मी कहती है, ये एक अच्छी चतुर लड़की के लक्षण हैं। What is the use? said Rima uncharitably. Her English is so atrocious.
Atrocious means very bad. रीमा का कहना था, ये uncharitably means unkindly. रीमा का बड़े ही निर्दयी स्वर में कहना था कि क्या फायदा, उसकी इंग्लिश तो बहुत गंदी है. The same may be said of your Hindi, countered Mr. San sharply. She was getting quite sick of Rima's attitude. Attitude means vartav, the way one think that feels about something. रीमा के पिता रीमा की विचारधारा को देखकर बहुत निराश हो रहे थे. उनका कहना था, इसी तरह रीमा आपकी हिंदी पुअर है, जैसे मालती की इंग्लिश पुअर है, वैसे ही आपकी हिंदी पुअर है. इवन मिसेस सेन डिड नॉट लाइक इट, और यह मिसेस सेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था. दैट नाइट रीमा's पेरेंट डिस्कस द मैटर, और उस रात रीमा के पेरेंट्स ने आपस में इन सारी बातों पर डिस्कस किया, विचार किया. वी पुट रीमा इनटू अ गुड स्कूल to make her smart and confident. I am afraid she is turning into a quite a little snob, said the mister sadly. Snob means a person who thinks she is much better than other reason. रीमा के पेरेंट का कहना था, हम रीमा को एक अच्छे स्कूल में डालेंगे जिससे रीमा बहुत स्मार्ट हो जाए और उसके अंदर कॉन्फिडेंस की भावना बढ़े. रीमा के पिताजी ने दुखी स्वर में कहा, मैं बहुत दुखी हूँ, चिंतित हूँ रीमा के इस प्रकार के बिहेवियर को देखकर. द फॉलोइंग सैटरडे वॉज इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन. Rima, who was participating in the English song category, was surprised to see Malti's name in the list of participants for the Hindi song category. Oily palates, sing also, she said needly to Claire. अगले सैटरडे को इंटर हाउस कंपटीशन था. रीमा ने इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी में भाग लिया और मालती ने हिंदी सॉन्ग कैटेगरी में भाग लिया. रीना ने जब यह देखा कि मालती ने हिंदी सॉन्ग कैटेगरी में भाग लिया है, तो उसने अजीबी तरीके से टोन कसते हुए कहा, ये ऑयली बालों वाली लड़की गाना गाएगी. क्रॉक योर मीन्स गिगल्ड क्लैरी. इसका मतलब कि वो भी मेंढक की तरह क्रॉक करेगी. दे वर टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, और उन्हें मालती ने रॉन्ग सिद्ध कर दिया. मालती sang beautifully. She had a melodious and well-trained voice. Rima and her gang had decided to jeer when Malti sang, but there was such absolute silence they did not dare to. They were sure to get caught. When Malti finished, the principal was the first one to start clapping, followed by the teacher and the students. मालती ने बहुत ही सुंदर सुरीले स्वर में गीत गाया. रीमा और उसकी सहेलियां उसके गीत में अजीबोगरीब आवाज करना चाहती थी, जो कि यह सुंदर सुरीली आवाज को सुनकर उनके अंदर ऐसी हिम्मत नहीं जागी जिससे वे अजीब आवाज निकाल सकें. उन्हें पता था कि अगर वे आवाज करेंगे तो वे पकड़े जाएंगे. जैसे ही मालती की गीत खत्म हुई, प्रिंसिपल सर ने सबसे पहले तालियों के साथ उसका हौसला बढ़ाया और उनको फॉलो करते हुए टीचर्स और बच्चे सभी बहुत जोर जोर से तालियां बजाते हुए उसे उसका हौसला अफजाई करना लगे. No one was surprised when Malti won the first prize. Rima did come first in her category. Somehow she felt no joy. किसी को भी आश्चर्य नहीं लगा जब मालती को गीत
गीत प्रतियोगिता में प्रथम और अव्वल दर्जे का स्थान प्राप्त हुआ। रीमा अपनी कैटेगरी में प्रथम आई, लेकिन उसे कोई भी खुशी नहीं मिली। As the term progressed, it was evidently clear to all that Malti was a bright child, was a quiet, studious and intelligent. She fared well in sports as well as in studies. Her forte was mathematics. Her simple, befriended, her appearance belied a sharp and nimble brain. Slowly, many of the girls began seeking her help in mathematics, help which she readily and cheerfully gave. The teachers had liked the respectful, intelligent girl from the beginning. Now the girls from the class also befriended her. अब धीरे धीरे क्लास में मालती का दर्जा अव्वल होने लगा। वह क्लास में सबसे होशियार लड़कियों में माने जाने लगी। वह मालती शांत, होशियार और अच्छी बुद्धि वाली बुद्धिजीवियों में मानी जाने वाली लड़की के दर्जे में कहलाने लगी थी। वह मालती खेल कूद और पढ़ाई दोनों में ही आगे थी। Forty means intelligent. She is very good in. वह मैथ्स विषय में बहुत होशियार थी। Belied means gave a false impression of somebody. उसका सिंपल हुलिया यानी उसका जो दिखना जो था, जो सिंपल बनकर जो वो स्कूल आती थी, साधारण अवस्था में जो वह स्कूल आती थी, उसको देखकर जो बच्चों के मन में गलत फहमी आई थी वह भी दूर होने लगी। निबल यानी एबल टू थिंक एंड अंडरस्टैंड क्विकली, और वे उसे अब समझने लगे थे कि मालती एक अच्छी और होशियार लड़की है। धीरे धीरे बहुत सारी लड़कियां उसकी दोस्त बन गई और वह सभी को मैथ्स पढ़ाने लगी और मैथ्स के जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो उन्हें सिखाने लगी। वह बहुत ही खुशी से और प्रथम स्थान देकर अपनी सहेलियों को, क्लास की लड़कियों को मैथ्स के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में सहायता करने लगी। द टीचर हैड लाइक द रिस्पेक्टफुल, और स्कूल की टीचर्स भी उसे बहुत पसंद करने लगे, होशियार लड़की बोलने लगे, एंड जिससे अब क्लास की सारी लड़कियां मालती की दोस्त बनने लगी। Not Rima and her cling, though clings means a small group of friends who do not allow other to join them. केवल रीमा और उनकी गैंग की जो लड़कियां थी वे ही अब मालती के पीछे नहीं आती थी और वे ही मालती से कुछ भी समझना नहीं चाहती थी। They stubbornly dislike Malti. Stubbornly means in a way that is difficult to improve. और वे लोग अपनी विचारधारा को मालती के प्रति बदलना नहीं चाहती थी। They were a stylish lot, and nothing that Malti did could alter the fact that she was not their type. They never lost a chance to poke fun at her, but particularly her English. वे लड़कियां काफ़ी स्टाइलिश थी और उनकी जो विचारधारा थी उससे बदलना बहुत ही मुश्किल था, और वे लड़कियां मालती के टाइप की नहीं थी। वे मालती से अलग प्रकार की लड़कियां थी और वे कभी भी ऐसे मौके को नहीं छोड़ते थे जिसमें उन्हें मालती की इंसल्ट करनी हो। जब भी मालती इंग्लिश के कोई भी अक्षर गलत पढ़ती थी, किसी भी शब्द का गलत उच्चारण करती थी, वे उसका मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटती थी। मालती फील्ड बैड अबाउट देयर बिहेवियर।
मालती उनके बिहेवियर के प्रति बहुत ही दुखी फील करती थी. One day she was on the verge of tear when the Rima mocked at her mercilessly because she said ask instead of ask. एक दिन मालती बहुत दुखी हो जाती है रीमा के ये मजाकिया बिहेवियर से, टीजिंग बिहेवियर से. जब मालती आस्क को आस्क कहती है, रीमा उसे वंस अगेन टीज करने लगती है. इस टीजिंग बिहेवियर से मालती निराश होकर रोने लगती है. हर वॉइस ट्रिम्बलिंग, मालती सेड, I know my English is weak. Your English is good. Please will you help me to improve it? मालती की आवाज़ बदल जाती है. उसकी आवाज़ रोने के स्वर में हो जाती है और वह कहती है, मैं जानती हूँ मेरा इंग्लिश कमज़ोर है और आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है. क्या आप मेरी इंग्लिश को सुधारने में सहायता करेंगी? I wouldn't be able to help you, my dear, replied Rima with an aggregated accent. रीमा बहुत ही रूड स्वर में कहती है, my dear, मैं तुम्हें कोई हेल्प नहीं करूंगी. Speaking proper English isn't easy for you country field type. आप जो country field के टाइप के हैं, उनके लिए इंग्लिश बोलना इतना कोई आसान नहीं है. मालती फेस टर्न रेड. मालती का फेस गुस्से से लाल हो गया. शी वॉन्टेड टू रिट्रॉट बट couldn't find the right word. She burst into tears and ran off. वह गुस्से में कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे. वह गुस्से में जोर जोर से रोती हुई वहां से भाग गई. That was horrid, Rima, said शहनाज. शहनाज ने कहा, रीमा, यह तो तुमने बहुत खराब किया. Yes, agreed Neha and Clary roundly. Roundly means in an emphatic manner. अब रीमा और क्लैरे दोनों ने कहा, हाँ, तुमने ये गलत काम किया रीमा, ऐसा नहीं करना चाहिए था. रीमा was shocked. अब रीमा आश्चर्य में हो गई. Her own friends had turned against her. अब उसकी दोस्तें जो थी, जैसे क्लैरे एंड नेहा, सहनाब, नेहा, क्लैरे, ये तीनों ही उसके अगेंस्ट हो गई. She walked off in a huff. अब वो huffed means bad mood. अब वह यानी रीमा भी बहुत ही निराश होकर वहां से चली गई. मिसेस सेन फाउंड हर subdued over lunch but decided to ask anything. Rima knew that she had behaved very badly. She was too proud to admit it even to herself. मिसेस सेन ने लंच के समय देखा रीमा बहुत शांत है. रीमा जानती थी कि उसने आज बहुत गंदा व्यवहार किया है और वह अपने व्यवहार को बहुत ही घमंडी व्यवहार मानती थी, लेकिन ऐसा मानने से कोई फर्क नहीं पड़ सकता था. The characteristic of Rima and Malti is simple with oily hair, bindi wearing, long skirt wearing. She is very good in most of subjects except English, and she is very good in singing, and she stood first in Hindi song competition also, whereas her weakness is only English speaking, not more than that. She is very friendly in nature, very cheerful. She is respectful to all the classmates. But in the case of Rima is stylish, having a short hair, wearing a short skirt and no bindi, no oil, and looking very smart. But by heart she is not very good. And
she is very good in English, but in other subjects she is average student, not very intelligent, not very dull. So, and she is very good singer in English, and she is nature wise she is very rude, catty, and snobbish, and she spoke fun at other, and she's try to bully others. She is very rude girl, and her attitude was very rude to other girls also, and she is not very friendly. She is friendly with having a same status in the classroom also. Students, here our lesson is completed. For exercise question answer, link given in a description. Regarding queries, you can write in a comment box. For further notification for videos, click on subscribe button and press the bell icon. Thank you.